हेलो। कल हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर मेरा पेन खत्म हो गया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तो आज थोड़ी देर के लिए आपसे मिलेंगे, 15-20 मिनट के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल करेंगे हम। आज अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, कितना पार्ट उसका रहता है। So we were talking about the structure of the testis. You have seen the structure of the testis. It comprises a large number of the seminiferous tubule. There are semen-bearing tubule. There is seminiferous tubule. कैसा है? Hairpin like structure, but with a difference. It is a loop-like, more like a loop. It has no free end. और इसके दूसरे एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एक स्ट्रेट पार्ट है जिसका नाम है ट्यूबुलस इरेक्टाई। ऑल द ट्यूबुलाई इरेक्टाई, प्लूरल ट्यूबुलाई इरेक्टाई, दे ओपन इनटू स्पेसेस present on the upper medial border of the testis. Medial border, that is internal border, median side के ऊपर, upper border के ऊपर, retitestes. So these tubuli erecti carry the spermatozoa into the retitestes, and from there, through the number of ducts, 15 to 20 fine ducts, very fine duct, known as the vasa efferentia. These are the vasa efferentia. The spermatozoa are carried into a very long, highly convoluted, coiled tube known as the epididymis, comprising 3 parts, or which can be differentiated into 3 parts. There is no line of demarcation कि इतना part caput है, ये carpus है, ये cauda. Arbitrary. Well, that part which lies over the head of the testis is known as the caput epididymis, and the part which lies on the median border or it is run along the longitudinal axis of the testis, it is known as the corpus epididymis. Corpus epididymis. Caput epididymis ऊपर वाला part, ये corpus epididymis, and the part which lies at the lower end, नीचे की ओर, it is known as the cauda epididymis. It is a very, very long tube. And finally, the tube separate in the form of the vas deferens. Singular is vas deferens. Since there are 2 tubes, they are known as the vasa differentia. It enter into the abdomen, passes across the urinary bladder, and then it joins the duct of the urinary bladder known as the urethra. Before it joins the urethra, it also receives the duct of a gland known as the seminal vesicle, which secretes the 60% portion of the seminal plasma. The terminal end of the vas deferens is like slightly dilated and form the ampulla. जब ये seminal vesicle vas deferens को ज्वाइन कर जाते हैं तो उसके बाद एक छोटी डक्ट बनती है, एक छोटी सी डक्ट बन जाती है, और उस छोटी डक्ट का नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। राइट और लेफ्ट साइड की इजैकुलेटरी डक्ट इट जॉइंस अ यूरेथ्रा, and a common urinogenital duct is formed, and that common urinogenital duct it runs through the penis. The part where the 2 ejaculatory duct join the urethra, that part is covered with a gland known as the prostate gland. The prostate gland is just of the size of a chestnut. It secretes a milky white, slightly acidic secretion. Seminal vesicle की secretion alkaline है, इसकी slightly acidic है, slightly acidic, due to the presence of the citric acid. ये वही citric acid है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बनता है और Krebs cycle का starting point है. Krebs cycle is also known as the citric acid cycle. Well, this is produced by the prostate gland. The prostate gland secretion also contains some phospholipid such as the choline, sialic acid, some enzyme, कौन से lytic enzyme, coagulating enzyme
डीकोगुलेटिंग एंजाइम, जिससे जो स्पर्म कोगुलम है वो लिक्विफाई हो जाता है. द स्पर्म when the semen is passed out, it is in the form of a coagulum, jelly like mass है. When it is left undisturbed in a test tube or in the open, it liquefies, पतला हो जाता है और लिक्विड बन जाता है. उसको लिक्विड बनने में कौन मदद करता है? The enzyme present in the prostate gland. आपके grandfather, not mother. Prostate gland is present only in men, not in the woman. तो लेट स्टेज में आफ्टर 60-65 यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट जनरली नॉट इन एवरी केस दे टेक लॉन्गर टाइम इन पासिंग आउट द यूरिन. वो बाथरूम जाते हैं तो बहुत टाइम लगा देते हैं. क्या होता क्या है कि इस एज के अंदर सभी आदमियों में, ऑलमोस्ट सभी आदमियों में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है. प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज, जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है तो ये यूरिथ्रा को दबा देता है, यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है. तो उसके कारण यूरिन का जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता. तो हमारे दादू को, दैट इज ऑफ दैट एज, ऑफ माई एज, दे हैव टू स्ट्रेन हार्ड. उनको जोर लगाना पड़ता है टू पास आउट द यूरिन. एंड इवन देन जो यूरिन बाहर आता है, इट ट्रिकल्स इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप्स. इट नॉट कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं होता, उसका ट्रिकल करता है. कारण क्या? प्रोस्टेट का बड़े हो जाना. क्या कहेंगे इसको? हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट और प्रोस्टेट मैगेली. ओके, मैगा का मतलब लार्ज साइज का हो जाना प्रोस्टेट का, हाइपर का मतलब ज्यादा, ट्रॉफी का मतलब फीडिंग ज्यादा. प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़े हो जाना, इट इज नोन एज अ प्रोस्टेटोमेगैली. मैगैली का मतलब लार्ज साइज का प्रोस्टेट का हो जाना. तो इस केस के अंदर कॉमनली क्या कहते हैं? इसको गदूद कहते हैं. पंजाबी में इस बीमारी का नाम क्या है? गदूद. ये ऑलमोस्ट सभी मेल को हो जाती है टुवर्ड द ओल्ड एज. इन दैट केस द प्रोस्टेट ग्लैंड हैज टू बी एक्सट्रिपेटेड. उसका पार्ट उसका रिमूव करना पड़ता है, उसको प्रोस्टेट को रिमूव करना पड़ता है, इधर सर्जिकली और थ्रू मेडिसिन. इसकी हाइपरट्रॉफी को रोकना पड़ता है. तो यूरिन के इसके अंदर सीमन में क्या इसका रोल है? अबे सीमन में इट प्रोवाइड द सिट्रिक एसिड, इट प्रोवाइड द फॉस्फोलिपिड, इट हेल्प इन द एक्टिवेटिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्म को एक्टिवेट करने में यह मदद करता है. एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल. देन क्या बन गया इसके? दो, एक तो आ गया यूरिथ्रा किसका? यूरिनरी ब्लैडर का. दो आगे इजैकुलेटेड डक्ट, न्यूमरस डक्ट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन द मेल यूरिनोजेनिटल डक्ट इज फॉर्म. मेल यूरिनोजेनिटल डक्ट इज फॉर्म. ये मेल यूरिनोजेनिटल डक्ट. दिस पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द मेल यूरिनोजेनिटल डक्ट, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी कवरिंग. वेल, दिस पार्ट इज नोन एज द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा. जितना पार्ट प्रोस्टेट के अंदर है, दैट इज नोन द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा. जितना पार्ट अनकवर्ड है, इट इज नोन द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा. मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के अंदर छोटे छोटे दो ग्लैंड खुलते हैं. ये दो छोटे छोटे ग्लैंड, इन ग्लैंड का नाम क्या है? COWPER, कॉपर्स ग्लैंड, आल्सो नोन एज bulbourethral gland. Bulbourethral gland. They secrete a mucus secretion. Their secretion is discharged during the sexual act, during copulation. It will lubricate the passage. It will lubricate the tip of the penis, the terminal end of the penis, known as the glans penis, and it will lubricate the vagina of the female. So the sexual act is without pain. So lubrication is essential. So some spermatozoa may also be passed along with the secretion of this gland, that are Copper's gland or the bulbourethral gland. The final part which runs through the penis is known as,
ये लीजिए, इट इज रनिंग थ्रू द पीनस, एंड दिस डक्ट which runs through the penis, it is known as the penile urethra, and it is known as the penile urethra. ये लीजिए, and here the terminal part of the penis is swollen, dilated, and it has lot many sensory cells. It is known as the glans penis. It is wrapped to the glans penis. कल यहां पे मैंने एक कट लगाया था in order to show you the structure of the penis. यहां पे अगर penis का हम transverse section लेते हैं तो how does it look like? The penis look like, ये लीजिए, ट्रांसवर्स सेक्शन में ये एब्सोल्युटली राउंडेड नहीं है, विड्थ ज्यादा है और एंटीरो पोस्टीरियरली ये कंप्रेस्ड है। ये देखिए, विड्थ ज्यादा है। इट इज कवर्ड विद द लूज शीथ ऑफ द स्किन। ओके, दिस आर प्रीप्यूस। इट इज कवर्ड विद द रिट्रैक्टाइल स्किन। इट इज मेड अप ऑफ 3 rod-like structure. 1, 2, ये साइड कौन सी है? आगे वाली साइड। कौन सी है ये आगे वाली साइड। ये दोनों उसमें 2 rod, एंड टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड, ये पीनस का पोस्टीरियर एंड, यहां पे देयर इज एन अदर स्पॉन्जी रॉड और द कनेक्टिव टिश्यू हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस, एंड यूरेथ्रा it passes through the urinogenital duct. It passes through the center of this median erectile rod known as a corpus spongiosum. Corpus spongiosum, spongy tissue होने के कारण spongiosum. And these rods, इनके बीच में कोई duct नहीं है. They have the numerous spaces and large number of the perineal arteries. जिसके बीच में बहुत सारे arteries present है. Like इसमें भी anterior side या dorsal side में there is present the superficial vein, the deeper veins, numerous small veins present all over the penis. And what did I tell you? During sexual act there is a blood supply to the penis is increased, but the veins get compressed. Veins get compressed. शायद आपको याद आ जाए, अगर साइकिल के अंदर आपने हवा भरवाई हो तो साइकिल में एक वेल्व होता है जिसके थ्रू हम हवा भरते हैं नोजल में। जब उसको हवा दबाते हैं, पिस्टन को, पंप को दबाते हैं, तो जो उसका वेल्व है वो खुल जाता है। बट व्हेन द पिस्टन इज ड्रॉन बैक, जब हवा उसके अंदर नहीं भर रहे हैं तो वही जो रबड़ है वो उसके होल को बंद कर देता है। समवट यही यहां पे भी है। जब ब्लड सप्लाई, व्हेन वी आर एक्साइटेड, मेल इज एक्साइटेड, तो उस समय ब्लड सप्लाई पीनस को डाइवर्ट कर दी जाती है। पीनस के अंदर जब ब्लड भरता है तो उसकी जो वेन्स हैं वो दब जाती हैं, ये वेन्स कंप्रेस हो जाती है, ब्लड वापस नहीं जा रहा, आ रहा है। जो जो इसके अंदर ब्लड आता है, जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना it gets engorged, it becomes swollen, it becomes rigid. And as the stiffness increases, it also becomes the erect. And the erection of the penis is essential for the penetration into the vagina. Due to psychological reasons, sometimes the male is unable to erect the penis, or he is unable to maintain the erection during the full act of the copulation, और the sexual intercourse के दौरान जो है वो पीनस को उतनी स्टिफनेस नहीं प्रोवाइड कर पाता, साइकोलॉजिकल रीजन और बायोलॉजिकल रीजन। एंड दिस इनएबिलिटी, दिस डिफेक्ट इज नोन एज द impotency. This can be cured. Well, that is beyond the scope of your syllabus. This impotency can be cured, but the inability to perform the sexual act is known as the impotency.
आगे चल के हम पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी भी पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी इज समथिंग एल्स एंड इम्पोटेंसी इज समथिंग एल्स। वेल दिस इज द इम्पोटेंसी। तो व्हाट हैपेंस इन तीनों टिश्यू के अंदर, कार्पोरा कैवर्नोसा प्लूरल, कार्पोरा सिंगुलर, कार्पस, कार्पोरा, ये दोनों को मिला के कैवर्नोसा, spongy tissue. Here is a fibrous tissue, and all the three they are held together. All the three they are held together by the connective tissue sheath, which is impregnated with the large number of the blood vessel. इसके अंदर भी blood vessels present हैं। कल मैंने बताया था कि कुछ एनिमल में इसको एक्स्ट्रा स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए there may be present a bone in the penis known as a baculum, और इट इज नोन एज ऑस पीनस। कहा था मैंने आपको, किसके अंदर बताया था? रैट्स के अंदर, रोडेंट्स के अंदर, रैकून्स के अंदर, कार्निवोर के अंदर। तो ये वो बोन जो कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू बोन्स हैं। ये मैंने आपको +1 में भी बताया था कि दैट द ऑस पैल्पेब्रा के बारे में, ऑस कॉर्डिस के बारे में। तो हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर कहीं कहीं के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहां पे भी ये बोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेक्सुअल एक्ट के, मेल सेक्सुअल एक्ट के, अब हाँ एक ग्लैंड और रह गया था, मैंने आपको बताया था, वो कहां पे प्रेजेंट है? दिस इज अ प्रीप्यूस। तो प्रीप्यूस के अंदरली और जो ग्लैंड है इसकी स्किन के ऊपर, दे आर नोन एज अ प्रीप्यूशियल ग्लैंड। वो क्या काम है उनका? दैट कीप द टिश्यू soft and retractable, but when not in use, excess of the secretion of the prepuce gland, वो पीनस के ऊपर कहां पे, ये आ गया पीनस का टर्मिनल पार्ट, ये पार्ट, ये इट इज स्वोलन, इसके ऊपर जमा हो जाती है, इसके ऊपर जमा हो गई। कहां पे है प्रीप्यूस? ये प्रीप्यूस था, ये दिस इज द प्रीप्यूस, और इस पार्ट के ऊपर ये जमा हो जाता है। व्हाइट इज मास, दिस इज नोन एज अ स्मैग्मा। स्मैग्मा, यहां पे इसके बीचों बीच का प्रेजेंट है, यूरिनोजेनिटल डक्ट प्रेजेंट है, स्मैग्मा, SMEGMA। तो लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट्स ऑफ द मेल सेक्सुअल एक्ट। तो मेल सेक्सुअल एक्ट के को 3 इवेंट के में बांटा जा, 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट पार्ट इज द इरेक्शन ऑफ द पीनस। ऑन गेटिंग द सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्लड सप्लाई टू द पीनस इज इंक्रीज एंड दैट रिजल्ट इन द इरेक्शन। ये अभी हमने डिस्कस किया हाउ द इरेक्शन टेक प्लेस। आफ्टर द इरेक्शन, द पीनस इज इंसर्टेड इन द थ्रू द female genital aperture into the vagina. This part is known as a copulation. The penis at this time is stiff, it is erect, and the male moves backward and forward time and again. The penis goes in and out, partially out and partially in. This act is known as a copulation. During copulation, the prepuce is withdrawn back, it is retracted back. जो prepuce है, ये जो prepuce है, it is retracted back, ये बाहर हो जाता है, and as a result of that इसका जो terminal part है, glans penis is exposed, it become uncovered. The glans penis rub against the epithelium of the vagina. I just told you that large number of sensitive cells are present in the glans penis, and as a result of that, certain other physiological changes take place in the body of the male. His breathing increases, the blood supply to the penis increases, and all the muscles of the body, voluntary as well as the involuntary, they undergo stiffening. It is known as the myotonia. सारे शरीर के अंदर अकड़न आ जाती है, and as a result of the myotonia, the semen which is present stored in the epididymis, it is expelled out in the form of a spurt. बड़ी तेजी से इसको सीमन को बाहर फेंक दिया जाता है, and the expulsion of the semen
is known as, it is referred to as ejaculation. The amount of the semen which is ejaculated at one time is known as, it is known as, कितनी क्वांटिटी है मैंने आपको बताई थी 3 to 5 ml. It is known as the ejaculate, जितना एक में बार में. And after the ejaculation, now what happened? कि after the ejaculation has taken place, there is a diversion of the blood supply and the penis become flaccid and it is gradually withdrawn out. It is drawn out from the body of the female due to the release of the blood, due to release of the tension, due to release of the blood. The penis becomes subsided. It is known as the subsidence or withdrawn from the body of the female. It is the third part. So पहला part कौन सा है? Erection. दूसरा part कौन सा है? Copulation. तीसरा आ गया subsidence. And subsidence के दौरान जो veins पहले बंद हुई थी, कोलैप्स हुई थी, वो रीओपन हो जाती हैं और जो ब्लड इसके अंदर पीनस के अंदर इकट्ठा हुआ था, well, that is carried into the general circulation and once again the penis becomes flaccid and it becomes the pendulous, and with that the sexual act is over. So the male sexual act. But there comes a moment, there comes one moment when the semen is ejaculated out. Well, that moment is the time of the, it is the peak of the sexual activity of the male. And it is the moment of the extreme sexual pleasure. It is the moment of extreme sexual pleasure, and this moment of extreme sexual pleasure is known as a orgasm. It is known as a male orgasm. ORGASM. So it coincides, the orgasm, that is sexual pleasure moment, it coincides with the time of the ejaculation. So sometimes the sexual act is there, but it is without orgasm. जब orgasm नहीं होता तो ejaculation भी नहीं होती. तो generally for the, that is the sexual reproduction, orgasm has to be there. Orgasm has to be there. Orgasm का मतलब यही है यहाँ पे, that is ejaculation का होना दोनों का, ये दोनों एक ही टाइम के ऊपर होते हैं, orgasm और that is the ejaculation. It coincide दोनों movement. So तो इसमें पहला एक्ट कौन सा हो गया? That is the erection of the penis. दूसरा पार्ट कौन सा आ गया? That is the copulation. तीसरा पार्ट कौन सा है इसके साथ? That is the subsidence. और जहां पे copulation खत्म होती है, end of the copulation is marked by orgasm. End of the copulation, it is at the climax of the sexual act. The climax of the sexual act is marked by a moment of the heightened sexual pleasure, and it is at that time all the muscle of the body, they are in a state of the tonus known as the myotonia. There is a breathlessness, there is the increased beating, increased heartbeat होती है, respiratory rate increase हो जाता है और body के muscle stiff हो जाते हैं. And there are the three events in the sexual act. आइए आज हमारा एक टॉपिक और है, और वो कौन सा है? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. अभी अब कंप्लीट नहीं हुआ. अभी हमने जो बात किया था इसके टेस्टिस के बारे में, इट इज ओनली द मॉर्फोलॉजी ऑफ द टेस्टिस. लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस. हिस्टोलॉजी. A thin slice of the testes. ये लीजिए thin slice यहां पे ले लिया. Very thin, 7 to 8 म्यू thick. इतना बारीक स्लाइस, 7 से 8 म्यू thick. It is placed on the slide. ये आपकी स्लाइड, शीशे की स्लाइड. इसके ऊपर ये सेक्शन पड़ा हुआ है, thin slice. It is stained.
इसको रंगा जाता है और इसको एक बहुत बारीक शीशे के टुकड़े से नॉन एज अ कवर ग्लास इसके ऊपर रख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और ये बन गई आपकी दैट इज स्लाइड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ऑफ द टेस्टिस। आइए जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है। हियर इज पहले एट अंडर लो पावर, हियर द टेस्टिस, सबसे बाहरी लेयर मैंने आपको बताई थी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके अंदरली लेयर का नाम क्या बताया था मैंने, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये कैपिलरी ब्लड कैपिलरी वेस्कुलोसा। जब लो पावर में देखते हैं तो वी फाइंड दैट देयर आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, large number of tubular structure in section के अंदर बहुत सी, कोई ट्यूब लंबी है, कोई राउंडेड है, and these are the seminiferous tubule, ये टेस्टिस है कि में सेक्शन दिखाई दे रहा है हमें, but not much detail is seen here. हम इसको अंडर हाई पावर के ऊपर देखेंगे, only a small part of it outside the seminiferous tubule there is a connective tissue or it is known as the interstitial tissue. ये ट्यूबों के बाहर जिसके अंदर ब्लड वेसल, फाइबर, फाइब्रोसाइट्स +1 में किए आपने, एंड एट प्लेसेस ग्लैंड्स आर सीन, ग्लैंडुलर सेल्स आर सीन। ओके, चलिए बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। हम ऐसे करते हैं, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैग्नीफाई कर देते हैं। लीजिए इतना हिस्सा मैं मैग्नीफाई करने जा रहा हूं, इतना हिस्सा। ओके, मैग्नीफाई का मतलब उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर एनलार्ज करने जा रहा हूं। कैसे दिखाई देगा, इसमें कितने ट्यूब्यूल है, 1, 2 और 3। चलिए ये आ गया ऊपर वाला ट्यूब्यूल, ये वाला आ गया, ये ट्यूब्यूल, ये देखिए ये वाला, ये ट्यूब्यूल, और ये आ गया तीसरा ट्यूब्यूल। अब तीनों को डिटेल नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि वो मेरा तो टाइम सारा खत्म हो जाएगा। आउटसाइड द ट्यूब्यूल देयर आर द फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये चारों ओर से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। और मैंने क्या बताया था, एट प्लेसेस देयर आर प्रेजेंट certain secretory cells, they are present in groups, के अंदर प्रेजेंट हैं, और इन्हीं के बीच में प्रेजेंट है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स हो गए, कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज। ओके, ये ब्लड कैपिलरीज, these cells are endocrine in nature and they are known as the interstitial cell। और बीच में क्या बताया मैंने, ये इंटरस्टिशियल सेल जो है आल्सो नोन एज लीडिंग सेल, LEYDIG, लीडिंग, और इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स ये पड़े हैं, interstitial cells. They are concerned with the secretion of a hormone known as androgen. Large number of androgens are produced. Andro का मतलब मेल, gen का मतलब causing, generation से androgens. There are number of androgens, but the most important androgen is the testosterone. It is testosterone. The testosterone
is responsible for the secondary sexual character of the male. There are the mustaches, beard, axillary hair, the hair on the chest, broad shoulder, muscular body, broadening of the shoulder, elongation of the lower limb. इन सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन. इट इज अ स्टीरॉयड हार्मोन. ये स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन विच आर डेरिवेटिव ऑफ द कोलेस्टेरोल. ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं, उनकी मॉडिफिकेशन से बनते हैं. वेल दे हैव द कोलेस्ट्रॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर नोन एज द स्टीरॉयड हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, सेक्सुअल एक्ट के लिए, दैट इज कॉपुलेशन के लिए. और तीसरा एक और चीज है, वेल इट क्रिएट ए लिबिडो. लिबिडो का मतलब डिजायर. डिजायर चीज अलग है एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट अलग है. वन में हैव द एंडलेस डिजायर टू कॉपुलेट, बट उसके सोशल सर्कमस्टांसेस उसको परमिट नहीं करते. तो डिजायर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम? लिबिडो. लिबिडो. ओके. वेल टेस्टोस्टेरोन इट कंट्रोल द लिबिडो. इट कंट्रोल द पोटेंशिया, दैट इज एबिलिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट. That is, it controls the potency of the male as well as the fertility of the male. Well, fertility depends upon the number of the spermatozoa produced. Well, that's what the Leydig cell or the interstitial cell, and the role of the interstitial cell you have studied in your +1 in the endocrine chapter. This part is endocrine. और भाई जहां पे एंडोक्राइन टिश्यू होगा वहां पे ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होंगे. इसी कारण यहां पे मैंने ये ब्लड कैपिलरीज दिखाई बहुत सारी, क्योंकि द हार्मोन जो ये सेल बनाएंगे इट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड. इसको ट्रांसपोर्ट करना है कहां से? थ्रू द ब्लड. इस कारण वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए. वेल दिस टिश्यू इज नोन एज द इंटरस्टिशियल टिश्यू, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट है? लीडिक सेल प्रेजेंट है. और लीडिक सेल को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी बॉडी, ब्रेन का पार्ट पिट्यूटरी बॉडी, which produce another hormone known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone. इंटरस्टिशियल, इसके ऊपर छत्र छाया किसकी है? छत्र छाया है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फीमेल में इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इट इज नोन एज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. मेल के अंदर हम जनरली ये टर्म ICSH यूज करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये आया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जब माइक्रोस्कोप में इसके नीचे देखेंगे, इसके बाहर देयर इज अ थिन लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. दिस थिन लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच होल्ड द वेरियस सेल टुगेदर इज नोन एज ट्यूनिका प्रोपरिया. इट इज नोन एज ट्यूनिका प्रोपरिया. Tunica propria. And inside the tunica propria there are many whorls of the cell, whorl rings of the cell. The outermost whorl, this is outermost whorl, जिसकी न्यूक्लियस कंपैक्ट है. न्यूक्लियस कंपैक्ट है. Well, it is the layer of the sperm seeds. ये आपको टर्म किताब में नहीं मिलेगी. स्पर्म सीड के लिए क्या टर्म यूज की हुई है? स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्म गोनियम का मतलब सीड. दिस लेयर आउटर मोस्ट वर्ल, एक वर्ल हो गया. इसकी न्यूक्लियस कंपैक्ट है. ये कंपैक्ट न्यूक्लियस है, कंपैक्ट न्यूक्लियस. द सेल्स ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया दे आर डिप्लॉयड हैविंग 46 क्रोमोसोम नंबर. डिप्लॉयड, they divide by mitosis repeatedly. अब भाई माइटोसिस, मान लो ये सेल डिवाइड किया तो क्या बने? 2 सेल बन गए. ये किया, ये भी 2 बन गए माइटोसिस से. एंड देन देयर इज एन अदर वर्ल और लेयर ऑफ सेल नोन एज, ये भी स्पर्मेटोगोनिया. पर जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना बंद कर देते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है,
तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये लीजिए अगला वर्ल, इसमें सेल बड़े दिखा रहा हूं मैं। तीसरे वर्ल के अंदर, दूसरे या तीसरे वर्ल में वी फाइंड large size cells having large swollen nucleus, और ये क्या कहेंगे इनको हम? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें अब मेयोसिस बंद हो गई, न्यूक्लियस बड़ी है इनमें, ये न्यूक्लियस बड़ी, ये आप मेयोसिस में पढ़ेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मेयोसिस 1। मेयोसिस को हम कहते हैं मैचुरेशन डिवीजन। मैचुरेशन डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, they are to end that are diploid। स्पर्मेटोगोनिया जो बाहरला वर्ल है, ये वाला स्पर्मेटोगोनिया, सारे they are also diploid but they are continuously proliferating। ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। मान लो 1 से 2 सेल बने, 2 में 1 सेल बड़ा होना शुरू हो गया। जो बड़ा होना शुरू हो गया वो क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो सेल अभी भी लगातार डिवाइड करता रहता है उसको स्टेम सेल कहेंगे, और वो आगे डिवाइड करता रहेगा। And in this way the primary spermatocytes are formed। The primary spermatocyte undergo meiosis 1 +1 में पढ़ा आपने, +1 में पढ़ा। तो ये क्या बन गया यहां? That is another whorl of cell is formed, and other whorl of cell relatively small in size। पर ये बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों कम दिखाई देते हैं अभी बताता हूं मैं, क्यों कम दिखाई देते हैं। क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मेयोसिस 1 हुई तो क्या बन गया? सेकेंडरी फुल फॉर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। they are n, that they are haploid। The secondary spermatocyte undergo meiosis 2। They undergo meiosis 2। Meiosis 2 is a mitotic division, and as a result of that another layer of small cell, oval cell are formed। These are known as the spermatids। Spermatids are also haploid। Spermatid टोटल कितने वर्ल हो गए? 1 2 3 4 5, 4 या 5 वर्ल दिखाई देते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, और अब क्या नाम दे दिया मैंने? स्पर्मेटिड। द स्पर्मेटिड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इनके अंदर परिवर्तन आता है। जो चीजें नहीं चाहिए वो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। फ्लैजेला अपीयर हो जाता है, एक्रोसोम बन जाता है। एंड द स्पर्मेटिड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। आप जब स्लाइड देखेंगे, आप देखेंगे इसके ल्यूमन के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन के अंदर हजारों लाखों स्पर्म दिखाई देते हैं। उनके फ्लैजेला अंदरली ओर और उनके सिर जो बाहरली ओर को डायरेक्टेड है। They are the spermatozoa, sperm। The process of the formation of the sperm from the primary spermatogonia, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कह दिया। इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहला कौन सा? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट का बनना, इसका नाम है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइट का बनना। और दूसरा पार्ट स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना, डिवाइड होना नहीं, ट्रांसफॉर्म बदल जाना। इट इज नोन एज अ स्पर्मियोजेनेसिस। और क्या बन गए? स्पर्म सेल्स बन गए।
तो दो पार्ट हो गए इसके स्पर्मेटोजेनेसिस के, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड द स्पर्मियोजेनेसिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक और सेल प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सेल। मैंने आपने देखा होगा यहां पे जगह जगह मैंने छोड़ दी गैप, इन गैप्स के अंदर जैसा गैप वैसी ही शेप। देयर आर प्रेजेंट सेल, टॉल सेल, दीज, ये यहां पे आ गया, यहां पे कौन से ये टॉल सेल्स कौन से हैं? दीज आर नोन एज सर्टोली सेल, दे आर द नर्स सेल्स, नर्स सेल। ये इनकी न्यूक्लियस, ये यहां पे आ गया, ये देखिए कैसी शेप बना रहा हूं, जैसा गैप। इनकी इस शेप के कारण, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के कारण, इट आल्सो होल्ड दी स्पर्मेटोसाइट इन पोजीशन। नाम क्या दिया मैंने? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के कई फंक्शन है भाई। एक तो जो डेवलपिंग स्पर्म है उनको नरिश करता है, हमने नाम दे दिया इसका नर्स सेल। सर्टोली सेल प्रोड्यूस ए प्रोटीन नोन एज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, abbreviated as ABP, ABP, okay. This protein hold the testosterone to keep its concentration higher within the seminiferous tubule. तो ABP टेस्टोस्टेरोन को पकड़ लेता है और टेस्टोस्टेरोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इसकी मात्रा कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, एंड दैट टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस ही, क्या चाहिए किसके लिए? फॉर द मैचुरेशन डिवीजन के लिए, मियोसिस 1 मियोसिस 2 के लिए। एक रोल और है इसका, इट प्रोड्यूसेस ए हार्मोन, ए प्रोटीन हार्मोन, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन हार्मोन नोन एज द इनहिबिन, INHIBIN। ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन हार्मोन है। This protein hormone is released from the testes to outside. It enter into the pituitary body, और पिट्यूटरी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसकी प्रोडक्शन को ये बंद कर देता है। ओके, दैट मीन इट हैज ए नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। जब स्पर्म का नंबर कम होता है तो इनहिबिन कम बनता है, तो उस वहां पे इनहिबिन कम बनेगा तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट के कारण ज्यादा स्पर्म बनेंगे। पर जब स्पर्म बनी जा रहे हैं और उसकी यूटिलिटी नहीं है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है। कौन करता है? इनहिबिन। कहां से वर्ड हुआ है? इनहिबिट से। इनहिबिट का मतलब रोक देना। और भाई हीरो साइकिल फैक्ट्री लगातार साइकिल बनाई जा रही है और अपने रिटेलर को उन्होंने फिरोजपुर भेज दिए। तो फिरोजपुर के रिटेलर लुधियाना मैसेज भेजे हैं कि सर अभी तो पिछले साइकिल नहीं बिके और हम आपसे और साइकिल नहीं खरीदेंगे। जब तक पुराने साइकिल नहीं बिकेंगे और साइकिल नहीं खरीदेंगे। अब हीरो साइकिल उतनी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको लो कर देती है, लो कर देती है कुछ देर के लिए, उसको लो कर दिया और यहां पे सारे साइकिल बिक गए इन द मीनवाइल। तो यहां पे रिटेलर ने कहा कि हमारे पास साइकिल खत्म हो गए हैं और आपके कस्टमर बार बार पूछ रहे हैं साइकिल बनाइए। वो साइकिल बनाना तेज कर देते हैं। जब साइकिल फालतू हो गए तो ठीक उसी ढंग से भाई हलवाई की दुकान के ऊपर मिठाई अभी नहीं बिकी है पुरानी, तो वो मिठाई नहीं बनाएगा। जब सारी पुरानी मिठाई बिक जाती है, बड़ी तेजी से बिक जाती है, तो नई मिठाई बन जाती है। तो उसको ये फीडबैक कंट्रोल के जरिए कहां पे किसको कंट्रोल किया जाता है? पिट्यूटरी बॉडी को। पिट्यूटरी बॉडी क्या बनाती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या क्या रोल हो गए इसके? सर्टोली सेल। पहली बात तो एक याद रखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक ही नॉन जर्मिनल सेल है और उसका नाम क्या है? सर्टोली सेल। SERTOLI।
क्या इसकी विशेषता है? इट इज दी नॉन जर्मिनल। और भाई जर्मिनल सेल कौन से होते हैं सर? जर्मिनल सेल द सेल विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, जो डायरेक्टली मेल गैमीट को या फीमेल गैमीट को बनाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? जर्मिनल सेल कहते हैं। तो सर्टोली सेल ये डायरेक्टली स्पर्म को नहीं बनाता, बट इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, इसलिए सेल का नाम क्या रख दिया हमने? नॉन जर्मिनल सेल। तो ये सर्टोली सेल के 4 रोल हैं। क्या है? एक तो इट होल्ड द स्पर्मेटोसाइट, उनको पकड़ के रखता है और उसकी मूवमेंट बाहर से अंदरली और को रेगुलेट करता है। ये बाहर से इन्हीं सेल ने अंदर में आना है, ल्यूमन की ओर आना है, पहला रोल। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, नंबर 2 रोल हो गया। तीसरा, इनहिबिन। और चौथा रोल इसका क्या मैंने बताया आपको? इट एक्ट एज ए नर्स सेल, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ जब बन रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओके।